ਮਾਸਕ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਸਥ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, WHO ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਾਸਕ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਅਗਰ ਉਹੀ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਸਕ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੁਝ ਹੈਂਡਮੇਡ ਮਾਸਕ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਟੀਚਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਸਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੈਸੇਜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਬੈਠੋ ਅਤੇ ਸੇਫ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜਿਸ ਇਹਨਾਂ ਮਾਸਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫ੍ਰੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਟੀਚਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਗਰੋਥ ਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਪੇੜ ਉਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਧਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮਾਸਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮਾਸਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈਂਡਮੇਡ ਮਾਸਕ ਹੈ। ਸਟੇ ਇਨਸਾਈਡ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੀ ਸੇਫ, स्टे इनसाइड, हिंदी देश की भाषा, हिंदी मीठी भाषा। ਇਹ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਸਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੀਚਰਸ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਸਕ ਹੈ, ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਟੇ ਹੋਮ ਸਟੇ ਸੇਫ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਮਾਸਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ हैं मैम, सब तो पहले स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ दैनिक सवेरा पे। नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है सीता कुशवाहा। सीता जी, ये जो आप तैयार कर रही हैं, ये कैसे माइंड में आया था कि मास्क के ऊपर आप कुछ जो कोट्स लिखे, लोगों को कुछ सोशल जो है मैसेज दिया जाए? ये मेरे दिमाग में ऐसे आया कि मुझे लगा है कि हम अपने जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं तो खुद अगर करके दिखाते हैं तो बच्चों को भी अच्छा लगता है कि हमारे टीचर भी क्रिएटिव कर रहे हैं। दूसरा मुझे लगा कि ऐसे टाइम में मतलब बहुत टेंशन वाला समय है, उसमें अगर हम बच्चों को क्रिएटिव रखें, दूसरा समाज में एक संदेश दे। जैसे कई लोग मास्क नहीं पहनते हैं, हमें लगता है इस तरह से जो हम क्रिएटिव करेंगे तो लोगों को अच्छा लगेगा, और लोगों ने बहुत पसंद किया क्योंकि इसमें जिस तरह से हमने संदेश दिया है, कोई ना कोई इसमें संदेश आ रहा है, तो उनको बहुत अच्छा लगा कि हमें मास्क पहनना चाहिए, घर में रहना चाहिए, या पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए, तभी हम अपने अर्थ को बचा सकते हैं, या बेटियों को पढ़ाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि बोलने की बजाय अगर हम क्रिएटिव करके दिखाते हैं, समाज पे उसका असर ज़्यादा पड़ता है। मैम, आपसे जानना चाहूँगा, आपका नाम पहले तो जानना। मेरा नाम रिंकू अरोड़ा है, मैं 39 मॉडल से हूँ जी। मैम, ये जो आप तैयार कर रही है, जैसे मैम ने बताया है कि एक क्रिएटिव वक्त ज़्यादा अच्छा एक मैसेज क्रिएट कर सकता है, अवेयरनेस ला सकता है। आपको लगता है कि जो आज के टाइम में इतना कुछ अवेयरनेस फैलाई जा रही है, टीवी के माध्यम से हो, मीडिया के माध्यम से हो, उसके बावजूद जो लोग हैं वो अपने घरों में नहीं बैठते हैं, जिसकी वजह से कोरोना लगातार अपने पैर पसार रहा है और मैसेज लगातार दे रहा है, और ये मास्क जो हमारी आज जीवन की एक लाइफलाइन बन गया है, ये हमारे लिए कितना ज़रूरी है और उसको किस तरीके से यूज़ करना है, ये आप बखूबी बताने। देखिए सर, मास्क है जो हम अगर मास्क नहीं यूज़ करेंगे तो जो दूसरों के कीटाणु हैं वो इजीली हमारे बॉडी में आ सकते हैं, इसलिए बेटर है कि हम मास्क यूज़ करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, जिससे कि हम इस कोरोना से बचा जा सके। हाँ जी मैम, और ये जो आप मैसेजेस तैयार कर रही हैं, इसके पीछे मोटिव क्या था कि कैसे आपके माइंड में आया कि ये चीज़ हमें करनी चाहिए ताकि हम अवेयर कर पाएँ लोगों को? सर एक्चुअली हम सब एक सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, तो सोसाइटी की तरफ से ही मैसेज आया कि हम इस तरह का क्रिएटिव काम करें जिससे हमारे जो बच्चे हैं वो अवेयर हो सकें। अगर बच्चे अवेयर होंगे तो समाज अपने आप अवेयर होगा।
तो बच्चों के थ्रू ही हम बच्चों को मैसेज देते हैं, अपने जैसे स्कूल के बच्चे हैं उनको मैसेज देते हैं, वो आगे अपने पेरेंट्स को ऐसे हमारे पास इतना मिडिल क्लास या लो मिडिल क्लास के बच्चे आते हैं तो उनको अवेयर करना ज़्यादा ज़रूरी है। मैम मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप ये जो कोट्स लिखती हैं तो ये कैसे माइंड में आता है कि इस चीज़ को हम ज़्यादा डिस्प्ले करें ताकि बच्चों को या और लोगों को इसका जो संदेश दे पाए? राइट, आई एम शबनम शर्मा फ्रॉम 23 मॉडल। तो इन कोटेशंस के साथ जो भी पढ़ेगा उसके दिमाग में ये ख्याल तो आएगा कि हमारी ज़िंदगी कितनी अच्छी है, ये कीमती है, उसके लिए हमें अपने आप को सेफ रखना है, एंड दिस इज़ द ओनली वन प्रिकॉशंस वी कैन टेक इट। तो इसको लगा कि अपनी ज़िंदगी अगर बचती है या हम दूसरों को सेफ कर सकते हैं तो क्यों ना ये पहना जाए। और इसके ऊपर कोटेशंस का तो ये फ़ायदा है कि इसको किसी को नहीं भी पता तो भी उसे शायद पढ़ के समझ आ जाएगा कि यू हैव टू वेयर दिस, आपको पहनना ही है और सबको सेफ रखना है। मैम जैसे आपने कहा कि कुछ लोग पहनना पसंद नहीं करते तो उनके लिए कुछ क्रिएटिव वाला जो अगर मास्क हो तो वो ज़्यादा उसको ईजिली कैरी करते हैं, आपको लगता है कि एक माध्यम भी बन सकता है कि लोगों के बीच में जाने का? ऑफ कोर्स यस, ये तो है ही है कि क्रिएटिव होगा तो लोगों को अट्रैक्ट करेगी जो चीज़, वो उसको डेफिनेटली पहनना और दिखाना चाहेंगे यस वी हैव करके। तो ये लिखना मुझे लगता है कहीं ना कहीं आज स्टेटस सिंबल के तौर पे भी मास्क को देखा जाता है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आजकल के ट्रेंड है, जैसे लेडीज़ को तो बहुत ही क्यूरियोसिटी होती है कि उसके सूट के साथ का, उसके ड्रेस के साथ का मास्क पहना जाए, तो उसके लिए ये बनाना या पहनना कलरफुल मास्क आई थिंक गुड, अच्छी बात है। ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੀਚਰ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਸਰ ਇਹ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਤੇ? ਸਰ ਇਹ ਡਰੈਗਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾਜ਼ ਦੇ ਆਪਾਂ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬੈਨ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਨਾ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਥਰੂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਾਸਕ ਬਣਾਏ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਫੇਸ 'ਤੇ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਹੋਮ ਸਟੇ ਸੇਫ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਮਾਸਕ, ਜਿਸ 'ਚ ਮੈਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ एज ए डायरेक्शन देना, बेटा ये मैसेज आप भी बनाएं अपने जैसे कंफर्टेबल आपके घर में जो भी कपड़ा उससे स्टिच करके घर पे मम्मा पापा से हेल्प लेके तो स्टिच करके पेंट आप करें, तो उसके लिए मटेरियल जो भी अगर उनको रिक्वायरमेंट हो तो मैं स्कूल में जाके बच्चों को भी दे भी देता हूँ, तो वो करते हैं बच्चे। तो काफ़ी अच्छे बच्चों ने मास्क बना के हमें शेयर किए हैं, जो ऑनलाइन क्लास में वो हमें दिखाते भी हैं, तो बच्चे खुद पहन के वो बच्चे उस टाइम बोलते हैं वहाँ जब ऑनलाइन क्लास चलती है। ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਕ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? अपन गिफ्ट कर देते हैं, जितना मान लो कि मेरे कोलीग्स हैं, टीचर हैं, वो ड्यूटी पे आते हैं, उनको लगता है मैं डेली कोई ना कोई नया मास्क पहन के जाता हूँ पेंट करके, तो जब भी उनको अच्छा लगता है वो कहती है मैं मास्क अपना बना के लाऊंगी, कल परसों आप मेरा पेंट करिए। मैं कहा ठीक है, आप थीम भी सोचिए कि क्या बनवाना चाहते हैं, तो उनको जो अच्छा लगता है उनको पेंट कर देते हैं। तो अब ना ट्रेंड में आ गया है, सभी टीचर बड़े अच्छे मास्क पहन के आते हैं, तो सभी को इंटरेस्ट क्रिएट हो गया, वो बच्चे भी जो है वो भी बनाने लग गया घर में सभी, तो वो भी पहनते हैं जब भी स्कूल में उनको किसी कारण से बुलाया जाता है तो वो भी पहन के आते हैं सभी। तो ये एक फैशन बन गया और अपने ट्रेंड में क्या है, एक अच्छी फैशनेबल पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको ट्रेंड में लेके आए हैं। थैंक यू। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਟੀਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਮਾਸਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਾਸਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਸਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਵੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪ੍ਰवीण पांडे ਦੇ ਨਾਲ अंकुश महाजन, दैनिक सवेरा टीवी। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647 84 374 94 648। देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे लई हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स।